Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you in Dubai International School and College, Mansehra. It's your class. It's class 8, subject English. Today we will discuss about the poem The Dance Awake. The Dance Awake उर्दू में बोलते हैं तलुए सुबह को या नमूदे सुबह को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर पोइट बेसिकली कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें पहले हम वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं A beautiful poem of the beginning of the new day with the rising of the sun. In this poem, the poet has beautifully used figurative language to describe natural scenes. This poem gives us the hope of freedom after slavery and makes us to have thousands of dreams and music from the hills. Let's talk about the poet of this poem. This poem is written by Otto Leland Buchanan, who was a poet and a composer. Was born in around 1895 in Washington D.C. and educated in the public schools in Washington. He is graduate of our University School of Liberal Arts, Washington D.C. and did special work in English at the Catholic University in that city. Okay, now move forward toward our poem. The dawn's awake, a flash of smoldering flame and a fire, ignites the east, then higher and higher, or all the skies so grey forlorn, the torch of gold is born. First of all, we will understand the new words. Here comes a new word in your second line. That is a smoldering. Smoldering means to burn slowly. And in third line, ignites. Ignites means start to burn. In the fourth line, forlorn, hopelessness. And the fifth line, the torch of gold. The torch of gold, it is it is used in place of sun, and it is a metaphor because we are comparing the torch of gold with the sun. Now comes toward the explanation of this stanza. In this stanza, the poet says the dawn's awake, सुबह तुलू होती है, a flash of smoldering flame in the fire, आग और आग के सुलग आग और शोले, और इसके अलावा क्या है, बहुत ज़्यादा किरणें वगैरह, इग्नाइट्स द ईस्ट हायर एंड हायर, जो कि क्या है, मशरक की तरफ से आती हैं, और क्या ये इनकी क्या है, ये ऊंचे से ऊंचे तर होती जा रही हैं, और ऑल द स्काई सो ग्रे फॉर लॉन, और क्या है, पूरे आसमान पर एक ग्रे सा कलर, जैसे हक्सतरी कलर कहते हैं, ठीक है, वो फैल चुका है। द टॉर्च ऑफ द गोल्ड इज बॉर्न, और इस हर तरफ एक सुनहरी रोशनी पैदा हो रही है, जैसा कि सोना आसमान पे मौजूद हो। नाउ कम्स टूवर्ड द स्टैंजा नंबर 2। द डांस अवेक, सुबह तुलू होती है, द डांस ऑफ द थाउजेंड ड्रीम्स इन द थ्रिल्स एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, अ पीएन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। पीएन बोलते हैं एवर लास्टिंग थिंग को, ठीक है। सॉन्ग ऑफ प्रेज को मीन्स के तारीफी नगमा। इटर्नल बोलते हैं एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला। वॉइस इज द न्यू अवेकनिंग मीन्स न्यू लाइफ आर द न्यू होप, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी हमारे पास। द डांस अवेक्स, सुबह तुलू होती है, द डांस ऑफ थाउजेंड ड्रीम्स एंड द थ्रिल्स, हजारों ख्वाबों और धड़कनों का निकलना, एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, और पहाड़ों पर गाए जाने वाली मौसीकी, अपीएन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, और क्या है, दायमी बहार के तारीफी नगमे। वॉइस इज द न्यू अवेकनिंग, नए बेदार होने वालों को आवाज़ देते हैं, मीन्स के लोगों को कहते हैं कि क्या होना चाहिए, कि आप लोगों ने, सूरज तुलू हो चुका है, कि आप लोग अपने अपने कामों के लिए यानी कि घरों से बाहर निकल जाए। और यहाँ पर जस्ट ये नहीं कि हम सिर्फ लोगों की बात करेंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा यानी कि जानवर, परिंदे वगैरह तमाम तर चीज़ें, जैसे कि निज़ाम है कि सुबह होती है तो तमाम तर चीज़ें घरों से बाहर निकल आती हैं। Comes toward the third stanza. The dance awake whispers of pent-up harmonies with the mingled fragrance of the trees. Pent-up harmonies. Pent-up harmonies means feelings that cannot be expressed. आपकी ऐसी feelings जो कि आप बयान नहीं कर सकते. With the mingled fragrance. Mingled means mixed. Fragrance बोलते हैं खुशबू को. Of the trees, faint snatches of half-forgotten song. Further stone and numb means unable to feel means कि ऐसी हालत होना कि जिसमें आप किसी किस्म की फीलिंग्स वगैरह, आप लोगों के एहसास किसी चीज़ का नहीं हो सकता। द बूम ऑफ लाइट क्रेव्ड अवेटेड लॉन्ग, क्रेव पावरफुल डिज़ायर फॉर समथिंग, यानी कि आपके किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखना, ख्वाहिश रखना, कि आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो। हैज़ कम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में होगा विस्पर्स ऑफ पैंट ऑफ हार्मनीज। विस्पर ऑफ पैंट ऑफ हार्मनीज बोलते हैं मुतनासिब सरगोश, डांस अवेक, सूरज तिलू होता है, विस्पर्स ऑफ पैंट ऑफ हार्मनीज, और इसके अलावा क्या होता है, मुतनासिब सरगोशियाँ, मुफीद मुतनासिब सरगोशियाँ, विद मिंगल फ्रेगरेंस ऑफ द ट्रीज, दरख्तों की सराहियत करने वाली खुशबू के साथ। सराहियत मीन्स के यानी कि आपके दिल को लुभाने वाली। फैंट स्नैचेस ऑफ ऑफ फॉरगॉटन सॉन्ग, दरमियान में भूल जाने वाले नगमे होश उड़ा देते हैं। फर्दर स्टोन एंड नम, वालिद गमज़दा और बेहिस्सी में। द बूम ऑफ लाइट वी क्रेव अवेटेड लॉन्ग, जिस खुश मिजाज मौसम यानी जिस रोशनी की हमने तलब की थी, या जिसका हमने इंतज़ार किया था, हैज़ कम, वो आ चुकी है। That's it, student. Our poem completed here, and the main idea of this poem is that
जब आप पोएम पढ़ते हो तो आपको मेन आइडिया का भी पता होना चाहिए। इसकी मेन आइडिया ये था कि इसके अंदर जो है वो स्लेवरी के बारे में बताया गया था कि कैसे आप एक अफ्रीकन और अमेरिकन पीपल कैसे यानी कि स्लेवरी फ्रीडम उन्होंने हासिल की थी, कि क्योंकि वो पहले स्लेवरी में थे और देन इसके बाद उन्होंने फ्रीडम जब हासिल की, तो जाहिर सी बात, जब इंसान फ्रीडम हासिल करता है तो उसकी डिफरेंट होप्स होती हैं, डिफरेंट डिज़ायर्स वगैरह होती है, ठीक है। और इस पोएम में तभी बताया गया द डांस ऑफ, कि हर मुश्किल के बाद क्या होती है, आसानी होती है, हर अंधेरे के बाद इंसान के लिए रोशनी होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।